जय भीम सभी को, जय भीम एवरीबॉडी। टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ टूर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। मुझे बताया गया था, विनती की गई थी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आप देखना चाहते हो, तो आज हम वो टूर करेंगे। सम फन फैक्ट्स अबाउट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इट इज़ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन अमेरिका and also it's the world's largest academic libraries. Also, it has 20 million repositories of physical and digital copies. Records of over 460 languages are present here. यहाँ पर तकरीबन 20 मिलियन डॉक्यूमेंट्स, किताबें डिजिटल और फिजिकल है। उसके साथ साथ 460 लैंग्वेजेस के इनके पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स काफ़ी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमिक लाइब्रेरी है और अमेरिका की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। 1638 was is its founding year and ever since it has been continuing. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ लाइब्रेरी का भी गठन हुआ था। Today we are going to see a specific which is a Widener library, one of the essential central sites जो हार्वर्ड यार्ड में एक हार्वर्ड वाइडनर लाइब्रेरी है जो one of the main libraries है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी is, when I started, I worked here about 4 years ago for about a year and a half or so, and I was working internally procuring South Asian section books. यहाँ पर मैं लाइब्रेरी के सिस्टम में काम करता था, तो मुझे थोड़ा सा इंसाइट था। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरीज तो तकरीबन उस जमाने में 95 से 97 के बीच में थे। आज का लेटेस्ट रिसर्च बताता है कि यहाँ 75 लाइब्रेरीज है। They were libraries around 95 or 99 when I was working. Now they've been reduced because some libraries got together and forced into one. Currently the records show there are 75 libraries, and also there are 25 libraries worldwide. Harvard University also has library in Italy and different parts of the world. The interesting fact of this library is there are books of Dr. Ambedkar. मुझे जब ये देखने के लिए गया था तो एक गौरतलब है कि मुझे देखना था कि बाबा साहब की किताबें यहाँ है क्या, और वहाँ पर बाबा साहब की किताबें थी। वो भी सेक्शन हम आज जाकर देखेंगे। Another insightful fact is that the library is underground for nearly 5 floors. Let's go and check out. I would go many times. मैं कहाँ पढ़ता था, मैं कैसे समय बिताता था, कौन से साइड में बैठता था, ये भी आपको आज हम बताएंगे। So let's go. चलो आज देखते हैं हार्वर्ड लाइब्रेरी। So ये हार्वर्ड स्क्वायर है। हार्वर्ड स्क्वायर का एरिया है, देखिए कितना बिजी और शानदार है। अभी हम हार्वर्ड स्क्वायर की एरिया में हैं। ये हार्वर्ड स्क्वायर है, यहाँ पर हम काफ़ी प्रोटेस्ट करते थे। ये एरिया रोहित वेमुला या जो भी वायलेंस होता है तो हम यहाँ पर आकर इकट्ठा होकर अपनी सॉलिडारिटी बताते थे। जब मैं यहाँ था CA प्रोटेस्ट और बाकी चीज़ें भी जहाँ यहाँ हुई है, हम यहाँ पर आते थे। ये वो इलाका है, यहाँ पर अभी हम जाएंगे अपोजिट में। ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एरिया, वो गेट का इस्तेमाल करेंगे। ये है मैस एव, इसको बोलते हैं मैसाचुसेट्स एवेन्यू। तो आइए जाते हैं लाइब्रेरी को। So the area behind me is called Harvard Square. Harvard Station is right there. We would protest here for the past 5 years that I was here. When there was Rohit Vemula, I was here with many of our people, comrades, supporters. We're supporting, expressing solidarity. The same was with the case of CA protests, many other protests. It's not just a site for protest, but also organizing. You will see many groups often here. They play music. It's a great site, and what we are going to do is we're going to go on the opposite side, which is where the Harvard Yard is and Harvard Library is located. So let's go. So this is the area called Harvard Yard. It's a beautiful area. Summer is my favorite place to come here, hang out. Many people just come celebrate their children's birthdays, or they have a little bit of organizing. They meet together, they talk together, and I think that's how we see. And these are the residences where students have stayed, and so there's often like this actor, this celebrity from Harvard Stadium. ये हार्वर्ड यार्ड का इलाका है, देखिए कितना खूबसूरत है, शानदार है। जब भी समर होता है तो मुझे यहाँ काफ़ी आना पसंद है, क्योंकि यहाँ की जो हरियाली है ये काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पर काफ़ी लोग अपने बच्चे का बर्थडे पार्टी हो या कोई ऑर्गेनाइजिंग हो, यहाँ पर आते हैं, कुकआउट होती है। बड़ा शानदार माहौल है। अभी ये रेनोवेशन से चल रहा है। जब भी ये टूर होती है यहाँ पर हार्वर्ड यार्ड की, ये यार्ड है, तो बताया जाता है कि यहाँ पर जो है ये मिक्स है। कुछ जगह हॉल है जहाँ पढ़ाते हैं कुछ, और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं, इनकी अकोमोडेशन है यहाँ पर।
यहाँ पर वो रहते हैं, तो बताया जाता है कि फलाना ये एक्टर मार्क जकरबर्ग यहाँ रखता था, ओबामा फलाना बिस्ताना होता था। तो जो भी इनके हार्वर्ड नोटेड एलुमनाइज है उनको बताया जाता था। अब बस हम सीधा वैसे जाएंगे तो हमको हार्वर्ड लाइब्रेरी दिखेंगे। एज वी गो थ्रू दिस पाथ टुवर्ड्स देयर वी विल नोटिस देयर इज अ हार्वर्ड लाइब्रेरी। और वो देखो वो जो बंदा है, कैन यू सी दैट गाय इन द मेटल? एग्जैक्टली, हिज नेम इज जॉन हार्वर्ड. It is after him that the university Harvard is named. He endowed, he bequeathed his donation, and the university was named after that. Before it was known as Radcliffe College, and eventually it came to be known as Harvard University. पहले Radcliffe College था यहाँ पर, अन्य institutions भी थे. अभी क्योंकि जॉन हार्वर्ड ने, जिसका अभी हमने पुतला देखा, जिसने पैसे दिए, उस पैसे से यूनिवर्सिटी का भी उनको सपोर्ट मिला, तो उन्होंने उसके नाम से कर दिया. अब जैसे हम जाएंगे, नाउ दैट वी विल सी एज वी आर वॉकिंग, वो जो शानदार नज़ारा है, दैट साइट इज कॉल्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वाइडनर. इफ यू जूम इन you will see the name Widener. You see, why is it called Widener? Because, as I will tell you, it's a great history. Widener was somebody who was a Harvard alumni. He studied here, and then he came from a well-to-do family who inherited much of his wealth. He made some money, but on the way, he was one of the passengers in Titanic. And the Titanic, as we know, sunk. And because of this, we lost him. But his mother then donated in his name to Harvard Library. Inside you will see Harvard University Library का ये जो कैंपस है, इसको कहा जाता है वाइडनर. वाइडनर क्यों? तो एक व्यक्ति का नाम है जो यहाँ की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, और वो गया था टाइटैनिक में. वो काफ़ी अच्छे घर से था, उसके पास पैसे थे. तो जब वो टाइटैनिक में गया, टाइटैनिक डूबी, उसकी जान चली गई. फिर उसकी माँ ने उसकी याद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पैसे दिए, और ये शानदार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी वाइडनर का यहाँ पर फाउंडेशन हुआ. अंदर उसकी पर्सनल लाइब्रेरी हमको दिखेगी, और अंदर आपको एक ख़ास चीज़ दिखेगी कि जो वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल्स जो गुटेनबर्ग की लाइब्रेरी प्रिंटिंग प्रेस से आती है, उसकी एक कॉपी है. वन ऑफ द रेयरेस्ट फर्स्ट प्रिंटेड manuscripts of Bible from Gutenberg is inside. So we'll take a look. आइए देखते हैं. So now we are on the steps of the Widener Library. Right across that, you can see it's a straight line, and that's the church. And this is the place where the graduation ceremony happens, and the church stage is given and people come and graduate. ये जो जगह है, ये सीढ़ियाँ हैं, उसके अपोजिट में ये यार्ड है यहाँ पर. और ये जहाँ जितना भी यार्ड एरिया है, वहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जब ग्रेजुएशन होता है, वैलेडिक्टरी होती है, तब यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, और यहाँ से फिर वो उनको डिग्री मिलने के बाद वॉकआउट होता है. तो अभी अंदर जाने के लिए आपको लगेगा ये लगेगा कार्ड. तभी हम अंदर जाएंगे.